Hello everyone. Today I am going to take a new chapter from it's not new chapter, it is the first chapter, okay? From the book Snapshot, and Snapshot, that is from that is the book of class 11, okay? English book of class 7, supplementary book is that, and of CBSE board, okay? So before going to the chapter, I would like to introduce you about the outline of the story. That means what the story revolves around, okay, and what is the theme of this chapter. So the story is about two Armenian boys. So what is called the Armenian is a tribe, okay? Armenian boys, Aram and Morud. So these are two characters, Aram and Morud, and they are the Armenian boys. It is said that the Armenian tribe is the world's most poor tribe. They were cousins. So Aram and Morud, they were cousins. They belonged to a tribe that was famous for its honesty, oh my god, and integrity, guys. So the this tribe is too much famous. Why? Because it is, though they are poor, but they are famous for honesty. Morad stole a beautiful white horse. Oh my god. What I've told you right now, just right now, that they are famous for their honesty. So, how did Morad steal a beautiful white horse? I will go to the chapter and I will tell you the whole facts. I will explain you everything. They justified it. They didn't steal the horse for money, but only for riding. Okay. Okay. तो उन्होंने घोड़े को चोरी किया था, ये तुम्हारा आपका उसको बेचने के मकसद से उन्होंने चोरी नहीं की थी, ठीक है, जबकि वो एंजॉय कर सके, राइड कर सके. बट फाइनली दिस सफर्ड फ्रॉम पैंग्स ऑफ कंसाइंस. यू नो, चोरी अगर करना है तो उसका तो रिजल्ट आएगा ही. It was that they had done something morally wrong and they returned the horse to its right owner because they realized that they had done the mistake, and that is why after that they had returned the horse to the owner. So what is the theme of this chapter, guys? The redemptive powers of forgiveness, understanding, honesty and community, okay, are themes that are enhanced through the next story. That means the story is about redemptive powers of forgiveness, ठीक है, क्षमा कर देना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है, ये सारा थीम है हमारा. सो community that deserve to the whole Armenian tribe. The whole Armenian tribe are famous for their honesty. So the chapter is a little bit ridiculous, humorous. Let's come to the chapter, guys. It's too much a lengthy chapter, so it's not possible to go for me line by line. That is why I have sorted out some of the lines and I would go through these lines. Let's go. So from here up to that, it has been said that actually when the incident happened, what incident? About stealing the horse. So one day back there in the good old days when I was 9 and the world was full. Who is I here? I here is Aram. Okay, he was 9 years old, and for him everything was full of imaginable things, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered crazy. Why he is considered crazy, I will explain in my next line. By everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning. सुबह के 4 बजे हैं और मोरड उसके घर पहुंचता है, ठीक है. अब क्यों पहुंचता है, चलिए देखें. एरम जो है jumped out of bed and looked out of the विंडो से देखता है और वो बिलीव नहीं कर पाता. क्या देखा उसने? My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. My God, Aram, whose dream, whose wish was to ride on a horse. Okay, though they are
too much poor, so it's impossible to purchase a horse. But now, that dream that seems to be come true. He said in Armenian, that means Morud speaks in Armenian language, that it's a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. Actually, Aram was thinking that he was dreaming, okay, he was daydreaming. Yeah. In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया आपको कि आरम का वही एक विश था कि वो हॉर्स राइड कर पाए, एंड दिस वाज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर. देखिए अब वो तो पुअर था, कभी तो परचेस करना पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए. हाँ, उनके पास पॉसिबल नहीं है कि वो एक घोड़ा खरीदें. ठीक है, सो we were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garogalian family, okay, again the Armenian tribe, Garogalian and Armenian tribe, that is called the Garogalian family, was living in the most amazing and comical poverty in the world. देख रहे हैं ना, वर्ल्ड में उनसे ज़्यादा पुअर शायद ही कोई हो. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कैसे हम पैसा पाएँ और कुछ अपने बेलीज में अपना वो पेट भर सकें. Not even the old men of the family, most important all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries तक. 11 centuries से वो फेमस हैं अपने ऑनेस्टी के लिए, और सारा वर्ल्ड जानता है कि आर्मेनियन ट्राइब बहुत ही पुअर ट्राइब है. ठीक है, उनका एक वक्त का खाना भी शायद मिलना मुश्किल है उन लोगों के लिए. चलते हैं यहाँ पे. तो वहाँ पे देखिए, जहाँ पे खाने का नसीब नहीं होता वहाँ पे घोड़े का सपना देखना तो इम्पॉसिबल है. तो आरम बोलता है, आरम ही नैरेटर है. ठीक है, आरम नैरेटर है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे. आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, नॉट बोल सकते हैं, इट्स कन्फर्म दैट आई हियर आरम. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other members of family. तो इतने पुअर हैं वो आर्मेनियन ट्राइब की, पॉसिबल ही नहीं है सोचना कि मोरट के पास घोड़ा आए या उसके किसी भी ट्राइब के पास, किसी भी मेंबर्स जो हैं ट्राइब के, उनके पास आए. सो अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि मोरट के पास कैसे आया पैसा, वो कैसे घोड़े को खरीदा, उसके पास तो पैसे नहीं है. इसका मतलब he was have stolen it, इसका मतलब उसने चोरी की है. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन. बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने पहले बताया था आर्मेनियन ट्राइब फेमस है ऑनेस्टी के लिए, तो वहाँ पे वो कैसे चोरी कर सकता है. नो मेंबर ऑफ द गैरोगलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, बट इट वॉज ट्रू, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. ये तो कन्फर्म हो गया कि मोरड ने घोड़ा चुराया था, एंड देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, एंड मैंने चूज़ किया, मतलब आरम ने चूज़ किया. It seemed to me stealing a horse for a ride was not the something as stealing something else such as money. Okay guys, तो यहाँ पे बहुत ही फनी इंसिडेंट बोल रहा है आरम कि घोड़ा का राइड करने के लिए चोरी करना ठीक है, उसे बेच तो नहीं रहे हैं, बेच कर पैसा तो नहीं ले रहे हैं, वो ख़राब है. ठीक है, वो रॉन्ग बात है. ठीक है, तो यहाँ पे वो चोरी नहीं हुआ. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. उसके लिए स्टीलिंग नहीं है. If you are very crazy about, अगर आप सच में किसी चीज़ के बारे में क्रेजी हैं, ठीक है, तो हो ही सकता है कि आप चोरी कर ले क्रेजीनेस के लिए. ये आरम बोल रहा है, ये मेरा थॉट नहीं है. चलिए यहाँ पे चलते हैं. The way my cousin Morad and I were, it wasn't stealing, it didn't become stealing until we offered to sell the horse. अगर हम लोग अगर ऑफ़र करते हैं हॉर्स को बेचने का ऑफ़र करते हैं, तभी इसको स्टीलिंग बोला जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू आरम एंड मोरड, इट इज़ नॉट द स्टीलिंग, बिकॉज दे हैवंट सोल्ड द हॉर्स टू गेट मनी. सो द बोथ कज़न jumped to the yard of the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Morad. देखिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया द प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे रोड द हॉर्स, जहाँ जहाँ वो घोड़े को दौड़ाए थे, ये वाला. ठीक है, जहाँ जहाँ वो घोड़ा को लेकर गए थे,
ठीक है, यही सब के बारे में डिस्कशन दिया गया कि वो कहाँ कहाँ गए थे लेकर। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वो पहले गए, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री एंड वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डीचेस एंड कंट्री रोड्स। इन लेस दैन 3 minutes वी वेयर ऑन ऑलिव एवेन्यू तक चले गए हम लोग, और वहाँ पे हम लोगों ने हॉर्स को बिगेन करना शुरू किया टू ट्रॉट वॉकिंग करने के लिए। एंड द एयर वॉज न्यू और लवली था, एंड द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजिन मोरड हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर। अब मैं आता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोरड को एज अ क्रेजिएस्ट मेंबर के हिसाब से काउंटिंग किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है क्यों। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी नैरेट किया जा रहा है, ठीक है। एरम बता रहा है हम लोगों को, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मोरड को क्यों क्रेजी बोला जाता है। बोल रहा है एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इट समवेयर एंड माय कजिन मोरड वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। इसका मतलब मोरड के जो एंसेस्टर्स है उनमें भी कुछ क्रेजीनेस है मोरड की तरह। देखिए वो ये क्रेजीनेस ही है ना कि वो घोड़े का राइड करने के लिए वो घोड़ा चोरी करके ला गए वो लोग। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, ठीक है, यहाँ पे अंकल खुसरो की बातें की गई हैं। एन एनर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बहुत ही ह्यूमरस है ये वाला, ठीक है। खुसरो का जो एंट्री यहाँ पे अब आ रहा है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है। देखिए गाइस, बोल रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। लार्जेस्ट मॉस्टेक इन द सैन जैकुलिन वैली, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया का लॉन्ग इंटीरियर वैली है ये। A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It's no harm, pay no attention to it." This is the dialogue of Khosrow. Okay? हर एक बात पे, हर एक लाइन पे वो यही बात बताएगा, इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, अटेंशन मत करो, ठीक है, सारा जगह ये सब बोलता रहेगा। दैट वॉज ऑल। देखिए यहाँ पे एक इंसिडेंट की बात की गई है कि कैसे ये प्रूफ होता है कि वो बोलता है इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, और वो कैसे क्रेजी है दिखाता है यहाँ पे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप। 8 blocks से दौड़ता हुआ आता है बार्बर शॉप पे और अपने फादर को बोलता है, मतलब खुसरो को बोलता है, जहाँ पे वो खुसरो अभी अपने मॉस्टेज को ट्रिम करवा रहा है। आकर लड़का बोलता है कि उनका घर जो है फायर पे जल रहा है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोअर्ड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। देखिए किसी के घर पे आग लगी है, ठीक है, तो हम लोग क्या टेंशन में पड़ जाएंगे, बट देखिए वो टेंशन में नहीं है, वो बोल रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है, अटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। सो खुसरो रोअर्ड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। मैंने बताया ना, और गुस्सा होकर बोला कि कोई हार्म नहीं होगा। माई कज़न मोरड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ठीक है। अब पता चला कि उसको क्यों क्रेजी बोला गया था मोरड को पहले। तो मोरड भी उसी टाइप का क्रेजी को बिलोंगिंग करता है। ऑल द मोरड फादर वॉज जोरब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बट मोरड के जो फादर हैं वो परंतु बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, नथिंग एल्स, रियलिटी में विश्वास करते हैं। And that's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. ठीक है, बोल रहा है कि हम सभी जो हैं अपने माता पिता की संतान है, बट मुझ में भी वही स्पिरिट रहेगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जोरब की तरह तो मोरड नहीं हुआ, वो उल्टे अपने अंकल की तरह हो गया, क्रेजीनेस। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe that had been from the beginning capricious and vagrant. तो मोरड तो अपने पापा की तरह नहीं हो पाया, प्रैक्टिकल किसको बोल पाएंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें पेशेंस हो, जो जानता है मेरा लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है, देखिए, तो अपने फादर की तरह तो नहीं हुआ, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैगरेंट। कैप्रिशियस का मतलब होता है फिकल माइंडेड, ठीक है। फिकल माइंडेड क्या होता है, देखिए, फिकल माइंडेड का मतलब होता है, समझिए, गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। एंड वैगरेंट का मतलब होता है वैगाबॉन्ड, मतलब आवारा घूमना। तो ये दोनों अब घोड़े पे चढ़ चुके हैं, ठीक है, चलते हैं। इट्स वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो लाइन बाय लाइन। एट लास्ट माई कजिन मोरड सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। वो खुद
अपना ये घोड़े को दौड़ाना चाहता है। एंड वी शैल सी से डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ठीक है, एक और डायलॉग है, ये है मोरट का डायलॉग। अंकल खुसरो का डायलॉग था पे नो अटेंशन, ओके, इट विल नॉट हार्म, पे नो अटेंशन। और ये मोरट का डायलॉग है। ठीक है, हैव अ वे विद अ हॉर्स, याद रखना है दोनों डायलॉग को। ठीक है, और मैं तो बहुत अच्छा घोड़ा चलाना, घोड़े को राइड कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा घोड़े के साथ चलता है। I got on my cousin Morat, kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run! Wazir, that means he is he is naming the horse Wazir. The horse stood on its hind legs और वो दौड़ना शुरू किया। चलिए, My cousin Morat raced the horse across the field, dry grass तक गया, irrigation ditches के यहाँ पे गया। ठीक है, और 5 minutes later returned, फिर वहाँ पे वापस आया। ठीक है, अब sun तो was coming up, अब तो सुबह हो चुकी है, सुबह 4 बजे वो लोग एकदम निकले थे। ठीक है, अब धीरे धीरे सूर्य की किरणें चारों तरफ बिखेर रही हैं। ठीक है, दिन होने वाला है, दिन हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी भी वो लोग देखिए घोड़े की सवारी कर रहे हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। सुबह सबके जगने से पहले घोड़े को फिर ठिकाना भी लगाना पड़ेगा। Once again it reared and snorted, then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikram Halibian, where it began to leap over vines, and the horse leaped over 7 vines before I fell, and then it continued running. तो ऐसे घोड़ा को घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देखिए, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। अब वो सोचेंगे कि घोड़े को छिपाए कहाँ। ठीक है, बड़ा एक टेंशन आता है उनके सामने। Well, he said, it's either take him back or hide him until tomorrow morning. तो छुपा के रखना पड़ेगा। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? कहाँ पे लोग छिपाएंगे इसको हम लोग? I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? कितने दिन पहले तुम चोरी किए थे इसको? It suddenly dawned on me that he had been wrecking this early morning. आज सुबह ही मोरट बताता है, आज सुबह ही मैंने इस घोड़े को चोरी किया है। और sometime and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride. ठीक है, एक तो एहसान करो और फिर देखो फिर गुस्सा होता है एरम वहाँ पे। ठीक है, एरम के लिए मोरट को पता है कि एरम बहुत ही अच्छा, उसको पसंद है जो बहुत ज़्यादा घोड़सवारी करना या घोड़े पे बैठना, इसलिए वो सुबह चोरी करते करते उसके पास आया। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे वो उसको रखता है, कहाँ छिपाता है घोड़े को। देखिए कहाँ पे आता है चोरी करने के लिए। मैं ऊपर नहीं जाता हूँ, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं फिर आता हूँ रिटर्न आपके पास। He walked the horse quietly in the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fethwajian. Okay, एक फेतवाजियन का एक फार्म था, अब नहीं है। ठीक है, बहुत एकदम डेजर्ट है, एकदम जंगल चारों तरफ हो चुका है। देयर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा एक टाइप का ग्रास होता है इन द बार्न पे। तो यहाँ पे वो छिपाएंगे घोड़े को। ठीक है, चलते हैं इस पैसेज में डायरेक्ट। एक्चुअली ये घोड़ा है किसका? ये घोड़ा है जॉन बायरो का। और जॉन बायरो पहुंचता है अंकल खुसरो के पास अपनी समस्या को लेकर कि वो क्या करे। Then afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette and he sat in a parlor. Parlor का मतलब होता है sitting room, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Bairo, an Assyrian. ये Assyrian या Armenian नहीं है, इसे अर्मेनियन लैंग्वेज नहीं आती है। Who out of the loneliness had learned to speak Armenian, बट किसी तरह उसने अर्मेनियन लैंग्वेज यहाँ पे सीखा है। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. ठीक है, और तभी उसने वो बताएगा कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। देखिए पिछले महीने मेरा घोड़ा चोरी हुआ था। ठीक है, हुई थी, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कौन लेके गया, कैसे चोरी हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है अब तक। देखिए फिर अंकल खुसरो अपना वो फेमस डायलॉग बोलेंगे। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, what is the loss of a horse, haven't we all lost the homeland, what is this cry over a horse। हम सभी अपने घर को छोड़ दे रहे हैं, कोई अपने कंट्री को छोड़ दे रहा है, तो ये कंट्री से गुम हो जा रहा है, तो घोड़ा गुम हो जाने से इतना ज़्यादा चिल्लाने का क्या है।
That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my surrey? सरे का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं सरे का क्या करूं? एक घोड़ा थोड़ी ना टान पाएगा, उसको 2 घोड़े की जरूरत पड़ती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल ने बताया, ठीक है, कि उतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर जॉन बाइरो, मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ आपके पास यहाँ पे। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, आपके पास पैर है इसलिए आपने आए, आप यहाँ पे आए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, मेरा तो बायां पैर बहुत दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोअर्ड, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। देखिए ये सारा कुछ बोलते जाएगा और वो अंकल खुसरो बोलते जाएंगे कि पे नो अटेंशन। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट, स्टॉक्ड आउट का मतलब होता है वॉकड आउट इन एंगर, चला जाता है गुस्से से। डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। द फार्मर जॉन बाइरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। तभी आरम बोलता है मोरट को, सॉरी मोरट बोलता है, ठीक है। द फार्मर वेंट अवे एंड ran over to my cousin Morat's house, and he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of young Robin. What is it he said? The farmer John Byro, I said, he visited our house and he wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. मोरट आकर बताता है एरम को कि जॉन बाइरो आया था आज घर पे, अपने खोए हुए घोड़े के बारे में बात कर रहा है। तभी एरम बोलता है कि जब तक हम लोग सीख ना ले तुम घोड़े को मत लौटाना, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। तो अगर घोड़े को अगर राइडिंग घुड़सवारी सीखने में 1 साल लग गए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है। माई कजिन मोरट लीप टू हिज फीट, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। एरम ने बोला 1 साल रखेंगे, क्या बात है, ठीक है। हीरो, व्हाट आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लिन फैमिली टू स्टील? तुम क्या सच में चोरी का इंजाम लगाने वाले हो? मतलब अभी वो सोचते हैं कि ये चोरी नहीं है। इन 6 months at the latest, he said, he threw the bird into the air. अच्छा जरूरत नहीं है वहाँ पे, आप यहाँ पे चलाइए गाइस। One morning on the way to Fathwajan's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. Okay, अब हम लोग क्लाइमेक्स पे पहुँचते हैं। तो एक दिन वो लोग घोड़े को लेकर, ठीक है, जा रहे थे, और तभी जो घोड़े का असली मालिक है फिर आपका जॉन बाइरो, वो रास्ते में मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मोरट ने बोला। चलो देखिए फिर से वो डायरेक्ट देता है। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, पहले बोला आई हैव अ वे विथ द हॉर्स, अब बोला मेरे को बातचीत करने का तरीका है फार्मर्स के साथ। गुड मॉर्निंग जॉन बाइरो, माई कजिन मोरट सेड टू द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब वो तो घोड़ा का मालिक है, उसको तो पता ही है कि वो उसका घोड़ा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? माई कजिन मोरट सेड टू अर्मेनियन, ठीक है, अर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है कि मैंने इस घोड़े का नाम माई हर्ट रखा है। अ लवली नेम, जॉन बाइरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है जो चोरी हुआ था। May I look into his mouth? Of course, Morat said. The farmer looked into the mouth of the horse, and the tooth for tooth, he said. दांतों से दांतों को चेक करता है वो। इसका मतलब क्या, ये फ्रेज है, ठीक है। Tooth for tooth मतलब एकदम परखना। I'd swear it is my horse if I didn't know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me. देखिए यहाँ पे आप जॉन बाइरो का एक बहुत अच्छा फीचर देख पाएंगे। वे जो बच्चे थे एरम एंड मोरट, ठीक है, जॉन बाइरो उन पर गुस्सा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही बात उनको बताता है कि आपका जो फैमिली है बहुत फेमस है वर्ल्ड में ऑनेस्टी के लिए। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, और ये जो घोड़ा आपने चोरी किया है ये मेरा ट्विन घोड़े का एक घोड़ा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, कुछ नहीं बोला देखिए कि मुझे ये लौटा दीजिए कि नहीं लौटा दीजिए, कुछ नहीं बोला। अब द बोथ बॉयज विल रियलाइज देयर मिस्टेक व्हाट दे हैड डन। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग दे हैव नाउ डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स, एंड दैट्स व्हाई दे हैड अराइव्ड टू जॉन बाइरो's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. पीछे पीछे कुत्ते भी आ रहे हैं उनके। अब देखिए फिर से अपना फेमस डायलॉग बोलेगा मोरट। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। सभी मोरट ने बोला कि चिंता मत करो,
मैं तो कुत्ते को भी संभाल सकता हूँ. My cousin Moran put his arms around the horse and pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away. ठीक है, थोड़ा सा लव करता है वो हॉर्स को और फिर निकल जाते हैं वो लोग. That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. बहुत खुश है जॉन बायरो कि उसे अब उसका घोड़ा मिल जाता है और वो कभी बोला नहीं अब उसके फैमिली को कि ये घोड़ा किसने चोरी किया था. ठीक है, तो अंकल खुसरो फिर लास्ट में वही एक डायलॉग देते हुए ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तो गाइस, दिस वाज द चैप्टर. आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, please watch this video. Thank you.